जीने की खूबसूरती एंड ये टैगलाइन है इसकी, जीने की खूबसूरती जीने में गवा दी, एंड व्हाट एग्जैक्टली इट मींस दैट. सो या I actually did not intend, but I feel like doing that, and I'm doing it. I just wanted to read out two poems. Yeah. Thank you. Congratulations, sir. So, as I said, this is my second book, and the entire inspiration is about some connect with ourselves, and a lot of that, of course, came. I would really thank my parents for that, because the grooming and all that, I still connect to that. But I think that voice, Lata Mangeshkar, which as I said, I don't think anybody will say he or she is not fan of Lata Mangeshkar, but I can assure you nobody can beat me, because that's what I derive from that voice. And music, and this is where it kind of led to. So my first book is contextualizing spirituality, breaking the time cycle. So this is a very simple view of when we talk about Kala Chakra, and what is meant by breaking the Kala Chakra and attaining moksha. It is actually told not in the religious way, but in a very pragmatic way of what we experience day to day. Okay. Ever since I have published that book, as I said, I am evolved. I have found myself at a different place, and it has been always my desire to explain and talk about that book. And really, whosoever that connect happens, he ends up getting to know what that book is. While I was doing that, I thought I should also have more means to tell that. And this is where, again, I'm not an author. I'm very jealous of people who are very good at reading, because I am not. So what I'm trying to communicate is, when you connect with yourself, that is where miracles begin. And both my books are miracles for me, because I have no background of writing, no background of poetry as well. But I think once you are connected with something, things happen. This book, it has 54 poems, and all happened within span of 2 weeks. And it was only to tell that message. So I'll read few, and then maybe. तो सबसे पहला तो जीने की खूबसूरती, right? So how beauty is in small things, but we almost kill at every moment by making it complicated, and I think we relate to all of that. So these are the words. था जवाब एक पल में, हम उलझे रहे कल में. था जवाब एक पल में, हम उलझे रहे कल में, बस खोते ही गए कुछ पाने के छल में. था जवाब एक पल में, हम उलझे रहे कल में, बस खोते ही गए कुछ पाने के छल में. गुरूर को ही अपने कुछ ऐसे हवा दी, जीने की खूबसूरती हमने जीने में गवा दी. फिक्र इस बात की थी कि सबको कैसे समझाए. वी ऑलवेज आर वरीड अबाउट हाउ टू टेक केयर ऑफ एवरीबॉडी, राइट? इसी एक कोशिश में खुद को रखा उलझाए. फिक्र इस बात की थी कि सबको कैसे समझाए, इसी एक कोशिश में खुद को रखा उलझाए. ख्याल में ही सबके अपनी जिंदगी भुला दी, जीने की खूबसूरती हमने जीने में गवा दी. जो ढूंढ रहे थे बाहर, वो तो था बगल में. रौनक जो समझ रहे थे छलावा था असल में. जो ढूंढ रहे थे बाहर, वो तो था बगल में. रौनक जो समझ रहे थे छलावा था असल में. जमीन से कई दूर ऊंचाई आसमां तक बढ़ा दी, जीने की खूबसूरती हमने जीने में गवा दी. लास्ट आंसर. आओ कुछ जीना सीख ले, हर पल में रहना सीख ले. दूसरों से कम अपने आप से तो निभाना सीख ले. फिर न कहना जिंदगी भर यूं ही जिंदगी उलझा दी, जीने की खूबसूरती हमने जीने में. सर गुलजार जी आ गए यहाँ पर. And again, I'm telling you, I don't know how this came, but you know, that's the miracle, right? लोग बोलते हैं ना कि माफ कर देना चाहिए,
ये किसी के ऊपर है। एक बोझ मैं हर पल उठा रहा था, एक बोझ मैं हर पल उठा रहा था, बड़ी ऐड से दुश्मनी निभा रहा था। एक बोझ मैं हर पल उठा रहा था, बड़ी ऐड से दुश्मनी निभा रहा था। माना सही था मैं गलत थे वो, माना सही था मैं गलत थे वो, पर सही गलत के हिसाब तले मैं दबा जा रहा था। जो जिसने किया किया और चल दिया, जो जिसने किया किया और चल दिया, पर मैं तो बस उससे ही संजो के थमा जा रहा था, बड़ी ऐड से दुश्मनी निभा रहा था। अच्छा बुरा सही गलत की दलीलों में उलझा था मैं, अच्छा बुरा सही गलत की दलीलों में उलझा था मैं, पर जुर्म की सजा तो खुद की ही दिए जा रहा था। बड़ी ऐड से दुश्मनी निभा रहा था। जब जानी ये कश्मकश, जब जानी ये कश्मकश, बस कुछ ऐसा किया मैंने, जब जानी ये कश्मकश, बस कुछ ऐसा किया मैंने, माफ उनको करता गया, रिहा अपने आप को किए जा रहा। और या सो एक और छोटी सी है, एंड देन of course there is a philosophy. I'll end with a romantic poem which is what is my precursor to the new book which I'll write. ये एक मैंने बोला ना कि आपको समझना, अपने आप को समझना कितनी बड़ी चीज है। जीने में एक खास बात हो गई खुद से जब एक मुलाकात हो गई। When I realized myself, that was the best thing. जीने में एक खास बात हो गई खुद से जब एक मुलाकात हो गई, हंसा उन उलझनों से मेरे रिश्तों पर, हंसा उन उलझनों से मेरे रिश्तों पर, सुलझ के जब सारी खाक हो गई। जीने में एक खास बात हो गई खुद से जब एक मुलाकात हो गई। वो तो वैसे ही थे, वो तो वैसे ही थे, नहीं कुछ बदला उनमें, वो तो वैसे ही थे, नहीं कुछ बदला उनमें, बस मुझे ही उनमें कुछ अपनी आहट हो गई। जीने में एक खास बात हो गई जब खुद से मुलाकात हो गई। जो थी हमेशा ओझल उस लंबे सफर में, जो थी हमेशा ओझल उस लंबे सफर में। This is about, we always look for destination very far, oh, it will come, but that's not the case. जो थी हमेशा ओझल उस लंबे सफर में, हर एक कदम पर वो मंजिलें साथ हो गई। जीवन में एक खास बात हो गई खुद से जब एक मुलाकात हो गई। आदत सी पड़ गई अब खुद से मिलने की, आदत सी पड़ गई है अब खुद से मिलने की, खुद से ही अब इस कदर मोहब्बत हो गई। जीने में एक खास बात हो गई खुद से एक मुलाकात हो गई। So last poem, as I said, this is, ये थोड़ी रोमांटिक है, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू चेंज द मूड, क्योंकि ज्ञान मेरे को एक मैंने इसमें ये भी आई रियली वांटेड टू एक्नॉलेज, बिकॉज देयर इज वन इन विच आई थैंक एवरीबडी, एंड दैट इज in which I could thank Lata ji as We'll well. have a full session, online session. बिल्कुल, right? Next धन्यवाद कहे हर शब्द इस रचना का, हर एक विषय इस संकल्पना का। Is it there? Yeah. उस दैवी लता का आभास देता हमेशा मुझे दिव्य एहसास, कड़वे कुछ अनुभवों में हमेशा पाई उसकी मिठास। So there is a poem thanking, and I thank Lata ji as well. Now this is my last poem, as I said, आंखें। प्यार की सबसे मीठी बोली आंखें ही बोलती है, we know that, right? And we'll end with this. बात करती आंखों से हाथों की लकीरें, अगर डेस्टिनेशन में है तो आंखें भी बोल जाती है, राइट? बात करती आंखों से हाथों की लकीरें, आंखों से ही की थी हाथ मिलाने की तकरीरें। बात करती आंखों से हाथों की लकीरें, आंखों से ही की थी हाथ मिलाने की तकरीरें, आंखों से ही हुए प्यार के मदहोश इशारे, जी रहे हैं हम बस उन आंखों के ही सहारे। न पाए आसपास तो आंखें करती तलाश, एक ही झलक उनकी लाई आंखों में मिठास, दिन रात है आंखों में बस उनके ही नजारे, जी रहे हम बस उन आंखों के ही सहारे। आंखों में उनका ख्याल भूले दुनिया का बवाल, आंखों में उनका ख्याल भूले दुनिया का बवाल, आंखें मिली आंखों से तो हाल हुआ बेहाल, लुटा दिया चैन तोड़ी दुनियादारी की दीवारें, जी रहे हम बस उन आंखों के ही सहारे। लास्ट इज वेरी, दिस इज द बेस्ट आई वुड से, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। मैं को पीना आंखों से रोज की बात हो गई, मैं यू नो इस शराब, मैं को पीना आंखों से रोज की बात हो गई, संभाल लिया करो हमें यारो जब उनसे मुलाकात हो गई, मैं खाने उजड़ गए अब ठिकाने बदल गए हमारे, जी रहे हम बस उन आंखों के ही सहारे।
This actually, yeah, I only designed this and this has that subtlety of Nice. जीने की खूबसूरती, बड़ी सिंपल सी और ब्यूटीफुल होती है लाइफ। हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। एक्चुअली लिविंग इन द मोमेंट जो बात होती है ना, दैट्स व्हाट इट इज। आगे पीछे बहुत कुछ होता रहता है, लेकिन उस मोमेंट पे बहुत कुछ होता है जो कि हमें विटनेस करना चाहिए। दैट्स व्हाट